بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ مولا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ساتھ میں داماد بھی تھے، کیونکہ آپ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تھا۔ آپ کو اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا۔ جب کوئی آپ کو اس نام سے پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ کو حیدر کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت علی نے اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ نے پیدائش سے ہی کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی، سوائے ایک جنگ تبوک کے۔ باقی تمام جنگوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے ساتھ شریک تھے۔ جنگ احد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 16 زخم آئے تھے۔ جنگ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کل جنگ خیبر علی کے ہاتھ پر فتح ہوگی، اور پھر اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن علی سے محبت کرے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی شہادت کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ظالم لوگ تیرے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار مار کر تیری داڑھی کو خون سے رنگ دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایک ہفتے بعد سن 35 ہجری میں مدینہ کے لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی۔ مولا علی کی خلافت بہت ہی مشکل اور پیچیدہ پریستھتیوں میں شروع ہوئی۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدینہ میں بلوائیوں کا ہی زور تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ مدینہ کے کئی صحاباؤں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، مگر کچھ نے نہیں کی، کیونکہ کچھ صحابہ یہ مانتے تھے کہ جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہ مل جائے تب تک علی کی بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی یہی شرط تھی۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کرنے والے صحاباؤں کو اپنی بیعت کے لیے کہا تو صحاباؤں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت اس شرط پر کریں گے کہ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا دیں گے۔ مولا علی نے کہا کہ میں عثمان کے قاتلوں سے ضرور بدلہ لوں گا، لیکن ابھی تک مدینے پر بلوائیوں کا زور ہے اور خلافت کا کام ابھی تک پورے طور پر مکمل نہیں ہوا ہے۔ اگر ابھی کوئی قدم اٹھایا گیا تو بلوائیوں کا فتنہ اور بڑھ جائے گا اور مسلمانوں میں خونریزی شروع ہو جائے گی۔ لیکن مولا علی کی اس مجبوری کو مسلمان نہیں سمجھ پائے، اور یہی وجہ آگے چل کر مسلمانوں میں خونریزی کی سبب بنی۔ اسی وقت شام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ حضرت معاویہ بھی یہی چاہتے تھے کہ پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے، بعد میں علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ آپ میری بیعت کر لیں اور مجھے خلیفہ تسلیم کریں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے میں ڈھیل کر رہے ہیں۔ تب امیر معاویہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور بغاوت پر اتر آئے۔ اس سے غصہ ہو کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام پر چڑھائی کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے کی جو شرط رکھی تھی وہ جائز ہی تھی، مگر ان کو مدینے کے حالات معلوم نہ تھے کہ بلوائیوں اور منافق سبائی گروہ نے کس قدر وہاں فتنے پھیلا رکھے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اچانک ان کو خبر ملی کہ مکہ میں آپ کے خلاف تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ خبر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام پر حملہ کرنے کا ارادہ بدل دیا۔ دراصل مکہ میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خبر ملی کہ مدینہ میں بلوائیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے اور علی ان بلوائیوں کو سزا دینے میں ڈھیل کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا لشکر لے کر
उन बलवाइयों से लड़ने मदीना की तरफ आ रही थीं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चाहती थी कि वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिलकर कातिल उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सफाया कर दे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मक्का से रवाना हुई तब एक सहाबी ने मशवरा दिया कि फिलहाल हमारी तादाद बहुत कम है, हमें पहले बसरा चलकर वहाँ के मुसलमानों को भी अपने साथ ले लेना चाहिए। लिहाजा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बसरा की तरफ रवाना हो गई। इनके साथ तलहा व जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी थे। लश्कर रास्ते में ही था कि इत्तेफाकन ख्वाब के चश्मा पर पहुंचे तो कुत्तों ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भौंकना शुरू कर दिया। जब इस चश्मा का नाम मालूम किया गया तो बताया गया कि यह चश्मा ख्वाब है। यह नाम सुनते ही उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मुझको यहाँ से वापस लौटाओ। लोगों ने वजह पूछी। आपने फरमाया कि एक मर्तबा हम बीवियों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मुझे मालूम हो जाता कि तुम में से किसको देखकर चश्मा ख्वाब के कुत्ते भौंकेंगे। इस वाक़े से माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घबरा गई थी कि कहीं मैं कोई गलत कदम तो नहीं उठाने जा रही। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लश्कर में कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते थे। उन लोगों ने माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये झूठ बोला कि यह ख्वाब का चश्मा नहीं है बल्कि कोई और ही चश्मा है। इस बात को सुनने के बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लश्कर फिर से बसरा की तरफ रवाना हो गया। बसरा पहुंचने के बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और तलहा व जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बसरा पर एक छोटी सी जंग के बाद कब्जा कर लिया। जब यह खबर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनी तो उनको बड़ा गम हुआ और वो लश्कर लेकर बसरा की तरफ रवाना हो गए ताकि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुलह मशवरा करके उनको सही बात बताई जा सके। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी काका बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा ताकि वो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुलह मशवरा करके उनको समझा सके। काका बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बात की और पूछा कि आप अली के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि हम सिर्फ उस्मान के कत्ल का किसास चाहते हैं और हम बस मुसलमानों की इस्लाह चाहते हैं, हम अली के खिलाफ कतल नहीं हैं। काका बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आपको अली पर यकीन करना चाहिए। अली भी उस्मान के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर मदीने के हालात ये हैं कि वहाँ बलवाइयों का जोर है। अगर खिलाफत मजबूत करने से पहले ही इनके खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो पूरे मुल्क की अरब में मुसलमानों में खूंरेजी हो जाएगी और सब दरहम बरहम हो जाएगा। इस्लामी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। काका बिन अम्र बहुत ही समझदार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज याफ्ता शख्स थे। उनकी बातों का आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल पर ऐसा असर हुआ कि वो अपने मकसद से रुक गई और कहा कि हम अली से सुलह करने को तैयार हैं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये खबर मिली तो वो भी बहुत खुश हुए और अपने लश्कर को लेकर मुसलमानों में सुलह की नीयत के साथ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ चल पड़े। दोनों लश्कर 3 दिन तक एक दूसरे के सामने पड़े रहे और सुलह मशवरे की तदबीरें होती रहीं। इसी दौरान अब्दुल्लाह बिन सबा जो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों का सरदार था, उसका गिरोह मौला अली के लश्कर में ही शामिल था। उसने सोचा कि अगर ये सुलह हो गई तो हमारी खैर नहीं, इसीलिए रात के अंधेरे में सबाई गिरोह ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लश्कर पर हमला कर दिया। अब्दुल्लाह बिन सबा के लोग आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लश्कर में भी शामिल थे। उन लोगों ने अम्मा आयशा को अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि अली ने हम पर धोखे से हमला किया है, और उधर अब्दुल्लाह बिन सबा के लोगों ने मौला अली को आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खिलाफ भड़काना शुरू किया कि आयशा के सिपाहियों ने धोखे से हम पर हमला कर दिया है। इस हमले के बाद दोनों लश्करों में जोरदार लड़ाई छिड़ गई। दोनों लश्कर एक दूसरे को मुजरिम समझ रहे थे, मगर हकीकत किसी को पता न थी। दोनों लश्कर मुसलमानों के थे। कोई भी मुसलमान अपने मुसलमान भाई का खून नहीं बहाना चाहता था। हर तरफ ये ऐलान हो रहा था कि कोई शख्स भागने वाले का पीछा ना करे, किसी जख्मी पर हमला ना करे, न किसी का माल लूटा जाए। ये ऐलान इस बात की दलील है कि दोनों लश्करों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत और दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दोनों लश्कर और उनके सरदार इस लड़ाई को गिरा और नागवार महसूस कर रहे थे। मगर
मजबूरन मैदान जंग में तलवारें चलानी पड़ी। किसी ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि जंग बहुत तेज हो गई है, आप ऊंट पर सवार होकर मैदान जंग में जाकर लोगों को जंग से रोकें। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे ही ऊंट पर सवार होकर मैदान जंग में पहुंची तो उनके सिपाहियों को लगा कि माँ आयशा उनका हौसला बढ़ाने आई है, और फिर जंग और तेज हो गई। उधर से मौला अली इस मंजर को देखकर खुद हथियार लेकर मैदान जंग में आ गई और अपनी फौज का हौसला बढ़ाने लगी। माँ आयशा का ऊंट अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिपाहियों के घेरे में आ पहुंचा। ऊंट को बचाने के लिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिपाहियों ने अपने कदम जमा लिए। जंग तेज हुई और देखते ही देखते ऊंट के इर्द गिर्द लाशों के अंबार लग गए। मौला अली ने जब ये मंजर देखा तो अपने आदमियों को हुक्म दिया कि किसी तरह इस ऊंट को मारो, वरना मुसलमान यूं ही एक दूसरे को मारते रहेंगे। ऊंट को गिरा दिया गया। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हिफाजत से वहां से निकाल लिया गया। फिर मौला अली खुद माँ आयशा के पास गई और उनको सलाम अर्ज किया, उनकी खैरियत ली। ये इस बात की दलील है कि दोनों की दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं थी। इस जंग का नाम जंगे जमल पड़ा। अरबी में जमल ऊंट को कहते हैं, क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस ऊंट पर सवार थी वही ऊंट जंग का मरकज बन गया था। इस जंग में अम्मा आयशा के 9000 सिपाही और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तकरीबन 2000 सिपाही शहीद हुए। मौला अली ने सभी शहीदों को दफनवाया और सभी की नमाज जनाजा पढ़ी गई। इस जंग में किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान का माल नहीं लूटा, ना ही किसी औरत या बच्चे को गुलाम बनाया गया। ये इस बात की दलील है कि लोग मजबूरी और गलत फहमी की वजह से आपस में लड़ पड़े थे, हालांकि सभी के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भरी हुई थी। इस जंग के बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बसरा में ठहराया गया और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बसरा पर हुकूमत कायम हो गई। इस जंग के बाद हर मुसलमान एक दूसरे के गले लगकर रो रो कर कहता कि हाय हम मुसलमान आपस में लड़ पड़े, काश ये दिन कभी न आता। इसके बाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम पर चढ़ाई के लिए रवाना हो गई। जब यह खबर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली तो वो भी उधर से अपने लश्कर के साथ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रवाना हो गई। मौला अली के लश्कर में 90,000 आदमी थे और दूसरी तरफ अमीर मुआविया के लश्कर में 80,000 आदमी थे। दोनों लश्कर अजीम एक दूसरे के सामने मैदान में आ ठहरे। कुछ दिनों तक सुलह की बातें होती रहीं। मौला अली चाहते थे कि अमीर मुआविया फौरन उनकी खिलाफत कबूल करे, मगर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शर्त थी कि पहले उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों को पकड़ा जाए, फिर खिलाफत की बैत करेंगे। अमीर मुआविया की ये शर्त जायज तो थी, मगर हकीकत ये थी कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों का अभी तक नाम भी मालूम न था, ना ही कोई सुराग था, बल्कि मदीना पर बलवाइयों का फितना काबिज था। इस सूरत में बलवाइयों से उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का किसास लेना बहुत मुश्किल था, मगर अमीर मुआविया अपनी जिद पर अड़े रहे और फिर मजबूरन जंग शुरू हो ही गई। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया कि जब तक सामने से हमला ना हो तब तक तुम उन पर हमला ना करना। चूंकि दोनों तरफों मुसलमान और एक दूसरे के अजीज दोस्त थे, लिहाजा सारे मुसलमान चाहते थे कि किसी तरह ये जंग टल जाए, मगर हालात ऐसे बन गए थे कि जंग लाजमी हो गई थी। शुरू में बस छोटी मोटी झड़पें होती रहीं ताकि बड़ी जंग होने से पहले ही सुलह का कोई रास्ता निकल आए। इसी तरह 1 महीना गुजर गया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मुहर्रम का महीना शुरू हुआ तो दोनों लश्करों ने लड़ाई को बिल्कुल ही रोक दिया, मगर इस सुकून और खामोशी के दिनों में भी सबाई गिरोह अपना काम करता रहा। सबाई गिरोह दोनों तरफ मुसलमानों में एक दूसरे के लिए नफरत व दुश्मनी को बढ़ाता रहा और फिर सफर के महीने में आखिरकार मजबूरन थक हार के दोनों लश्करों में फैसला कुन जंग शुरू हो गई। साथ ही दोनों लश्करों से ये ऐलान करा दिया गया कि जब सामने वाला हार मान ले तब उस पर हमला मत करना, ना ही भागने वाले पर हमला करना, जख्मियों का माल ना लूटा जाए, किसी लाश को टुकड़े टुकड़े ना किया जाए, औरतों और बच्चों को गुलाम ना बनाया जाए। जंग शुरू हुई। दोनों तरफ से तलवारें चली, खून बहा, सर भी तन से जुदा हुए। इस जंग का एक काबिले जिक्र वाक़या ये है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ सिपाहियों के साथ तेजी से हमला किया
और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे के सामने जा पहुंचे और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आवाज देकर कहा कि ए मुआविया, मुसलमानों का कत्ल कराने से कोई फायदा नहीं, आओ हम दोनों मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करें, हम में से जो कामयाब होगा वही खलीफा बन जाएगा। मगर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार जंग होती रही, यहाँ तक कि दोनों तरफ से 70,000 लोग शहीद हो गए। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जंग जीतने ही वाले थे कि अचानक मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लोगों ने कुरान को अपने नेज़ों पर बांधकर बुलंद कर दिया और कहने लगे कि हमें कुरान का फैसला मंजूर है, यानी हम सुलह को तैयार हैं। ये देखकर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर लड़ाई से रुक गया और जंग वहीं खत्म हो गई। सुलह के लिए बैठक बिठाई गई और तय पाया गया कि दोनों तरफ से एक एक आदमी मुकर्रर किया जाए जो कुरान से हमारा फैसला कर दे। 6 महीने का वक्त लिया गया मगर कोई सही फैसला ना निकाला जा सका। जंग रुक तो गई मगर अमीर मुआविया ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत भी नहीं की बल्कि खुद को खलीफा बना लिया। हकमैन के फैसले से पहले कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि सुलह ना हो बल्कि लड़ाई से ही फैसला किया जाए, मगर जब सुलह के लिए हकमैन को मुकर्रर कर दिया गया तब इन लोगों ने मौला अली को काफिर कहना शुरू कर दिया और जंग पर आमादा हो गए। ये लोग ख्वारिज कहलाए। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको समझाने की कई कोशिशें की मगर नाकाम रहे। बाद में मजबूरन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनके साथ जंग करनी पड़ी और फतह हासिल की। इस जंग में तकरीबन 9 ख्वारिज बच निकले थे। इन खारिजों ने मौला अली, अमीर मुआविया और अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ये कत्ल एक ही तारीख को एक ही वक्त पर होना करार पाया। चुनांचे 16 रमजानुल मुबारक जुमे के दिन फजर की नमाज का वक्त मुकर्रर हुआ। जब 16 रमजानुल मुबारक की तारीख आई तब 3 खारजी लोग मंसूबे के मुताबिक निकल पड़े। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो किसी तरह इन खारजियों के हमलों से बच गए मगर मौला अली नहीं बच पाए। अब्दुल रहमान बिन मुलजिम नामे खारिज अपने 2 दोस्तों को लेकर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के इरादे से कूफा रवाना हो गया। वो तीनों मस्जिद में जाकर छुप गए। जैसे ही अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने मस्जिद में आए तो इब्ने मुलजिम ने मौला अली की पेशानी यानी माथे पर तलवार का जोरदार हमला कर दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं गिर गए। 2 खारजी तो वहां से भाग निकले मगर इब्ने मुलजिम मुसलमानों के हाथों पकड़ा गया। मौला अली ने फरमाया कि अगर मैं इसके हमले से वफात पा जाऊं तो इसे मेरे किसास के बदले कत्ल कर देना और अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं इसका फैसला खुद करूंगा। इब्ने मुलजिम मलून खारजी की तलवार का जख्म मौला अली की कनपटी तक पहुंच गया था और तलवार की धार दिमाग तक उतर गई थी मगर फिर भी मौला अली जुमे के दिन तक जिंदा रहे। अगले दिन 17 रमजानुल मुबारक सन 40 हिजरी को मौला अली शहीद हुए। मौला अली की खिलाफत तकरीबन 5.5 साल तक चली। जितनी मुसीबतें, जितनी बगावतें मौला अली के हिस्से में आई थी उतनी किसी खलीफा के हिस्से में नहीं आई, मगर फिर भी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक पर डटे रहे। मौला अली और अमीर मुआविया के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और ना हम मुसलमानों की ये हैसियत है कि हम 2 अजीम शान सहाबाओं को गलत कहें। एक तरफ प्यारे नबी के दामाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के भाई और कातिबे वही अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों अपनी जगह सही थे मगर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज्यादा हक पर थे। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौला अली की मजबूरियों को ना समझा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम एक सहाबी से मोहब्बत रखें और दूसरे से नफरत और उस पर लान तान कसने लग जाएं। आज भी मुसलमानों में ऐसे कुर्तोगलो मौजूद हैं जो मुसलमानों में फूट डालने का काम करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वजह से हम हमारी अजीम शान हस्तियों को बुरा भला कहने लग जाएं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत में जो भी मुसीबतें बगावतें पैदा हुई वो सब मुनाफिक सबाई गिरोह की चालें थी। इन्हीं लोगों ने मुसलमानों में जंगें करवाई और यही लोग मौला अली की शहादत की वजह बने। हम मुसलमानों को चाहिए कि इन वाक़यात से सबक लें और अपने अंदर दीन का जज्बा कायम करें और हमारे बीच बैठे मुनाफिकों को पहचानें जो हमें आपस में लड़वाने का सपना पाले हुए हैं।